All right, so we are now live, and we have with us Mayur Puri, who is a well-known figure in Bollywood. He dons many hats, but above all, I think he's a great individual, a great human being, and that is what counts the most. In Bollywood, he dons many hats. I can hear my voice again. All right, so everyone who's watching us and who's going to join in, a very good afternoon to you guys, and wish you a very happy Mother's Day. मयूर पुरी, सबसे पहले आपसे मदर्स डे की विश हम जानना चाहेंगे आपके अंदर. Hi everyone, thank you for joining in. I hope you are having a fantastic time while you're locked down with your family. And the most important part of any family is the mother, right? अगर माँ नहीं है तो परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बिना माँ के. मैं क्या बोलूँ, माँ का और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में it's such a everybody knows it. It's like telling somebody something that they already know. So I just want you all to be grateful and happy that you know there's a mother figure in our lives, and somebody has given birth to us, has taken care of us, and we have experienced this joy which even angels don't have. फरिश्तों की भी माँ नहीं होती, सिर्फ इंसानों की माँ होती. क्या तो that is wonderfully put, Mayur sir. So it's a happy coincidence that I am getting to speak to you after such a long time. हम last बड़ौदा में ही मिले थे. I know. Last time we spoke, it was like what, 2 years back. I think 2 years back when you had come to Baroda to deliver the TED talk. Remember we made a live for your yes. Insta or Facebook or something. It was hilarious. Remember? I'm glad you remember. मुझे तो याद है, but I'm glad you remember. It was one of my funniest live sessions. It was crazy. हम लोग कितना हंसे थे, पता है? Okay, so I think it will be there on your Facebook memories. It will still be there. You should repost it. Yes, I will. So બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે તમારું ગુજરાતનું એક કનેક્શન છે. So let us first talk about that connection, and then I'll ask you a couple of questions. એટલે બહુ deep down dig કરો તો મેવાણી નીકળે અંદરથી. મેવાણી નીકળે. કેવી રીતે મેવાણી નીકળે? So I lived in Mehsana from very young age, मतलब बचपन से टॉडलर था तब से लेके till 7th standard, यानी 11 साल की उम्र तक महसाना में पला बड़ा. उसके बाद कलोल which was part Mehsana district at that time. अब गांधीनगर ने चुरा लिया है वो, it's gone into गांधीनगर district now, but तब वो महसाना डिस्ट्रिक्ट था. तो मेरे अंदर का महसानी अभी भी जिंदा है. और अगर आप लोग जानते हैं महसाना के लोगों को तो बड़े खतरनाक लोग होते हैं. मतलब मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो दुनिया भर में क्रिकेट कैसे खेला जाता है कि आदमी ऐसे बैट लेके वेट करता है बॉल आने का. अगर महसानी आदमी है तो आधी पिच पे जाता है ना, ऐसे करके मारता है. We go and face troubles. हम सामने से गले लगाते हैं मुसीबत को. That's being in Mehsana. So how did this from staying in Mehsana and Kalol, which are not really as big a city as an Ahmedabad in Gujarat, for example, or even Surat for that matter, तो वहां से लेके मुंबई तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपके दिमाग में एक ख्याल था कि ये मुझे करना है? I think when you want to do something and you really want to do it, it's not a choice. I don't have an option. I had to become a writer. I had to become a lyricist. Life is a matter of a lot of strange coincidences that happened, but I would have ended up doing this. मैं और कुछ करने नहीं पाता. बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे में रहते हैं और फिर भी वो राइटर नहीं बन पाते या फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते, चाहते हैं मगर फिर भी नहीं कर पाते. I don't want to say anything to anybody. Everybody has their own journey. Everybody has their own problems. Everybody has their own life. मुझे लाइफ में सबसे पहली बात शर्म नहीं थी. मतलब I was very बेशरम in terms of कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. मुझे शर्म नहीं थी लोगों को बोलने में कि I want to become a writer. और लोग हंसते थे. People used to laugh at me. बिल्कुल कलोल में किसी को पता नहीं था डायरेक्शन क्या होता है. मैं बोलता मैं हूँ पिक्चर बनाइस, तो लोगों को बहुत ये लगता था कि यार शू बात करे जहाँ like that. But the other thing is you got to really work hard. You got to really work hard at your craft. You got to improve every single day. देखो, एक होता है हॉबी, एक होता है सीरियस हॉबी, और एक होता है प्रोफेशन.
You cannot become a professional unless you do something every day. You might have hobby, you might be very serious about your hobby. आप coins collect करते हो, birds watching करने के लिए जाते हो साल में 2 बार, वो सब hobbies या serious hobbies है. But profession वो होता है जो आदमी रोज करता है. So at very young age I started writing every day. See, you will not go and sit in a plane of a pilot who's saying कि आज मैं शौक के लिए प्लेन चला रहा हूँ पहली बार. तो आप नहीं बैठोगे उसके प्लेन में, आप बोलोगे भाई मेरे को ऐसा पायलट चाहिए जो रोज प्लेन चलाता है. You want to be sure, right? So being a professional means you do something every day. When you do something every day, it becomes a part of your life. फिर दरवाजे खुलने लगते. So I was in Mehsana, Kalol at that time in 11th 12th standard. और ऑलरेडी बदनाम हो चुका था. मतलब कलोल में छोटा सा गांव है, वहां पे जितने भी लोग थे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले यंग बच्चे, उनको पता था कि एक पागल रहता है हमारे यहाँ पे, इसको पिक्चर बनाना है और इसको. So then people started in volunteering information. अहमदाबाद में नाटक थे रहू छे तार त्या जવું છે ऐसे करके. So then I started getting leads for plays. I started doing plays in college. प्लेस से टीवी सीरियल का काम मिलना शुरू हो गया. टीवी सीरियल से फिर बाद में बहुत सारा काम अहमदाबाद में 6 साल मैंने काम किया. एड फिल्म बनाया, ये वेबसाइट लिखी है, इंटरेक्टिव सीरीज बनाई है. कोई काम को ना नहीं बोलता, जो काम आता था सब करो. किसी ने बोला एल्बम लिखेगा, हाँ लिखेगा. किसी ने बोला बच्चों का एल्बम लिखेगा, हाँ लिखूंगा. किसी ने बोला गजल का एल्बम लिखेगा, हाँ लिखूंगा. किसी चीज को ना नहीं बोला, सब काम करते रहने का करते. अपने दरवाजे से कोई निराश नहीं जाना चाहिए, उसको काम लेके ही जाए अपने पास से, खाली में कोई जाए नहीं. तो थोड़ा पंजाबी खून जो है मेरा, और गुजरात में पला बड़ा, तो व्यापारी बुद्धि तो है ही. तो एक पंजाबी गुजराती का बहुत खतरनाक कनेक्शन है. और आर्ट से प्यार वो एक इंसानियत वाली बात है. बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड टू आर्ट्स, आई एम वेरी कनेक्टेड टू हाउ पीपल्स लाइफ कैन बिकम बेटर विद आर्ट. तो करता गया. और फिर अहमदाबाद से बॉम्बे में आई वाज वेरी लकी क्षितिज, मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल गई. बॉम्बे में आते ही तीसरे दिन संजय गढ़वी से मुलाकात हो गई एंड ही गेव मी अ जॉब इमीडिएटली कि यू आर वेरी टैलेंटेड. इन द फर्स्ट मीटिंग ही टोल्ड मी कि तू बहुत टैलेंटेड है और मैं तुझे अपना चीफ एडी बनाता हूँ आज से. जबकि मैंने उसके पहले कोई फिल्म नहीं की थी. मैंने सीरियल किया था, एड फिल्म्स की थी, मगर मैंने कभी फिल्म में काम नहीं किया. बट ही सेड नहीं, तू बहुत इंटेलिजेंट है, यू विल बी माय चीफ एडी. And he made me his chief AD. And while we were working on the first film which was called तेरे लिए, 99 में बनी थी वो फिल्म, उस पे काम करते करते संजय सर को पता चल गया कि मैं पहले लिखा करता था. I was a good writer also. तो उन्होंने कहा भी मेरी नेक्स्ट फिल्म तू लिखेगा. So that's how I got मेरे यार की शादी. My first film on screen credit, big Bollywood credit, is for a Yashraj film. तो I was lucky. So dreams do come true. या पर उसके लिए नींद से उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है. मैं आपके पीछे फिरदौस का एक पोस्टर देख पा रहा हूँ. Oh, this. जिसके बारे में आपने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी पोस्ट की थी. टेल अस समथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट. यस, फिरदौस एक शॉर्ट फिल्म है, 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनी है. और पिछले 2.5 साल हो गया इसको बन के. अब मैंने भेजना बंद कर दिया है फिल्म फेस्टिवल्स में. और वो भेजना बंद किया है, उसका कारण ये है, ये पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं जितने अवार्ड्स हैं, ये सारे फिरदौस के अवार्ड्स हैं. ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स आई हैव गॉट फॉर मेकिंग दिस लिटिल फिल्म कॉल्ड फिरदौस. छोटी सी फिल्म है, 17 मिनट की है. सचिन जिगर का म्यूजिक है उसमें, दिव्य कुमार ने गाना गाया है बहुत अच्छा. राहुल भट्ट है जो ये नीचे दिखाई दे रहे, ये राहुल भट्ट. और ये पॉला मैगलिन कनेडियन एक्ट्रेस. बहुत खूबसूरत अभिनय, बहुत खूबसूरत कहानी. एक हेवन की, फिरदौस का मतलब होता है सातवां आसमान, द हेवन. उसकी एक कल्पना, उसका एक नज़ारा है कि अगर हो सकता है हेवन ऐसा, और वो बहुत ही खतरनाक नज़ारा है. मतलब इट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट, इट्स एवरीथिंग दैट वाज प्रॉमिस्ड, बट स्टिल इट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट. तो ये फिल्म बहुत अच्छी रिसीव हुई है. मगर ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट आई हैव. मुझे 3 फिल्में बनानी है इस प्रोजेक्ट में. एक फिरदौस है, दूसरी जो फिल्म बनाऊंगा मैं उसका नाम है पेड्रोस पापास पैराडाइज. तो ये इस्लामिक हेवन के ऊपर सवाल उठाती है, वो कैथोलिक हेवन पे सवाल उठाती है. और तीसरी सीरीज की जो फिल्म मैं बनाऊंगा उसका नाम है 33 मीटर्स फ्रॉम निर्वाणा. और उसके बाद शायद मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा अगर सरकार नहीं बदली तो. इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा. हम सब यहीं पे रहेंगे और बहुत कुशल मंगल. मैं मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली टॉलरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिलीव्स, कि दूसरे की बिलीफ को कैसे लेके चलना है. So, और सवाल उठाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए. Very true. That's true. So, talking of your career and you as a lyricist, this is a question which I have to invariably ask. कि बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं. हालांकि my point of view on this is very different. But बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि आजकल तो सिर्फ रिक्रिएटेड या रिमिक्स गाने ही बनते हैं, अच्छे गाने या नए गाने नहीं लिखे जा रहे हैं. What is your take on that first?
अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं मगर फिर लोग सुनते नहीं हैं। आपने आखिरी बार कौन से गाने पे पैसा खर्च किया था मेरे को बताओ। विच सॉन्ग यू डाउनलोडेड एंड यू पेड फॉर इट। अगर आप फ्री में म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको वही म्यूजिक मिलेगा जो रद्दी के जो फ्री में क्या मिलता है, जिसकी कीमत नहीं है वही फ्री में मिलता है। बट इफ यू सपोर्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इफ यू सपोर्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु आर क्रिएटिंग वंडरफुल म्यूजिक, एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले सचिन ने गाना डाला है रंगरेजा, कितना प्यारा गाना है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट काम नहीं हो रहा है। मैंने अर्जुन कानूनगो के साथ में 3 या 4 गाने बनाए हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट फ्रॉम एनी फिल्म एंड दे आर वंडरफुल सॉन्ग्स। सो और मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक में भी नया लिखा जा रहा है। आप जरा देखो ना, मतलब क्या इरशाद भाई है, अमिताभ है, स्वानंद है, ये लोग अच्छा ही तो काम कर रहे हैं यार, कोई खराब काम थोड़ी कर रहा है। मगर मनोज भाई है वो भी अच्छा लिख रहा है, काफी सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं। पर मगर हर एक फिल्म में एक रिक्रिएटेड गाना बनाना क्यों जरूरी हो गया? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई थिंक ये इनसिक्योरिटी है प्रोड्यूसर्स की, म्यूजिक कंपनीज की, कि हमको हमारा टेस्ट तो है नहीं, हमको तो अकल है नहीं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। हम तो वी डोंट हैव दैट नॉलेज, वी डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज, नॉर डू वी हैव दैट काइंड ऑफ अ हिम्मत कि यार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। जो पहले के लोग ट्राई करते थे, अभी जो म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं या जो प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं। यार अपने को मालूम नहीं कौन सा गाना चलेगा, पार्टी का सॉन्ग एक पुराना लेके रिमिक्स डाल दो, तो पता है वो गाना तो हिट था ही। तो आप इट्स लाइक अपन क्या बोलते हैं, चाइनीज ऑर्डर किया या इटालियन ऑर्डर किया, ऐसी कोई डिश ऑर्डर किया अपन ने ऑनलाइन, जो कभी नाम नहीं तो सुना। हाँ, तो फिर बोलते हैं साथ में एक यार एक दाल तड़का भी मंगा लो यार, कि क्या मालूम वो कैसी निकलेगी, अच्छी निकलेगी नहीं निकलेगी, कम से कम अपन दाल चावल तो खा लेंगे। तो रिमिक्सेस एंड रिक्रिएशंस एंड मतलब पुराना जो हिट काम है वो वही दाल रोटी की तरह है। उन लोग को थोड़ा सिक्योरिटी लगती है कि यार एक डाल देंगे तो कम से कम ये तो निकल जाएगा। तो मगर अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे और आप उसको हिट करेंगे ना एज एन ऑडियंस, तो वो भी चलेगा, तो 100% चलेगा। 90s में कितना अच्छा इंडिपेंडेंट म्यूजिक था, आप देखिए 90s में, अर्ली 90s में, मिड 90s में आपको लकी अली तब मिला, आपको अलीशा चिनॉय तब मिली, आपको मतलब सब स्ट्रिंग्स तब मिला, स्ट्रिंग्स आपको तब मिले, एक शान तब मिले, सारे के सारे आप जिनको अभी सुन रहे हो वो सारे तभी तब, और तब उस जनरेशन ने उनको पाला, उनकी सीडी उनकी कैसेट्स खरीदी, पैसे जमा कर करके। मुझे याद है मेरी 1000 रुपए मेरे महीने में कमा नहीं पाता था, वो 1000 रुपए में से मैं 500 रुपए की सीडी लेता था या 600 रुपए की सीडी खरीद लेता था, क्योंकि वी नीडेड टू सपोर्ट दैट। टुडे यू आर वाचिंग टिकटॉक एंड यू आर सपोर्टिंग टिकटॉकर्स, तो म्यूजिक यू डिजर्व। तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का तो एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया है, और उसकी हम डिटेल उसकी डिस्कशन एटलीस्ट अभी तो ना ही करें तो अच्छा है। बट आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के जो एज के हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अभी तो क्या गाने बनते हैं, मतलब कुछ भी लिरिक्स लिखते हैं। पहले के जमाने के, आई नो, आई थिंक यू नो वेयर आई एम हेडिंग टू, कि पहले के जमाने में तो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे जाते थे, और आजकल ऐसा लिखा जाता है कि सारी के फॉल्सा, कभी कैच किया रे कभी मैच किया रे, क्या है ये? I think Sadi Ke Falsa is a very beautiful song, and it's a great example of understanding what goes inside a woman's mind or a woman's heart. And I will give you an example. हम लोग गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में थे एक पैनल में, और उसी पैनल में मेरे बाजू में भावना सोमैया जी थी जो कि बहुत फेमस क्रिटिक हैं, एंड शी कुड नॉट बिलीव दैट आई हैव रिटन द सॉन्ग। मतलब जब जब मेरा इंट्रोडक्शन किया गया तो बोला गया कि साड़ी के फॉल्सा इन्होंने लिखा है, तो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी सेड शट अप, हाउ कैन यू राइट इट, यू आर अ मैन, यू आर अ बॉय। आई सेड दैट्स ओके, आई एम अ बॉय, बट मैं अपनी मम्मी के साथ में, अपनी आंटीज के साथ में, अपनी मौसियों चाचियों, अपने आस पड़ोस वाली लेडीज के साथ में मैं कई बार गया हूँ, और वो मैचिंग सेंटर होता था अपने यहाँ पे, वो मैचिंग सेंटर के बाद वो साड़ी का फॉल मैच करने के लिए कितने घंटे की जद्दोजहद। आई अंडरस्टैंड देयर पेन, आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। और हिंदुस्तान में आधी शादियां तो वैसे ही निभरी हैं, पति के साथ मन मिले ना मिले, साड़ी का फॉल तो मैच होना चाहिए कम से कम, वो जरूरी। तो आपको कई बार लगता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, मगर कई बार बहुत होता है, मतलब यू नो इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल। साहिर साहब ने भी तो ऐसे ही गाने लिखे हैं ना, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा घबराए, तेल मेरा है मुश्की, गंज रहे ना खुशकी, उसकी जिसके सर पे हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। उसकी तो ऐसा वक्त वक्त पे गाने होते हैं। आप देखिए फिल्म राइटिंग का जो है वो, आई एम राइटिंग फॉर माई कैरेक्टर, आई एम राइटिंग उस कैरेक्टर को क्या गाना चाहिए क्या बोलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट आई थिंक,
मेरा अपना फिलॉसफी, मैंने तो वो भी लिखा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, वो मेरी फिलॉसफी नहीं है, उसमें कितना खतरनाक किस्म का मैं तो कहता हूँ उस गाने के डबल मीनिंग नहीं है, एक ही मीनिंग है और वो खराब है। तो तूने ऐसा मुझे निचोड़ा, एक बूंद भी न छोड़ा, खाली बर्तन हो गया। So he's talking about oral sex in that time. Then there is a line in that के तूने ऐसी करी तबाही, ये जो मेरा है सिपाही फिर से अटेंशन हो गया। So he's talking about an erection. So तो उस वक्त भी मैंने किया है शुभ मंगल सावधान। तो it's but it is clever. आसान नहीं है ये लिखना, it's very difficult. So song writing is a craft. आप उसकी आप मेहनत देखिए कितनी है उसके पीछे। नहीं, हाँ, एब्सोल्युटली मेहनत तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, but obviously it is very obvious that we tend to compare different eras, we tend to compare different artists, और ये बहुत एक मुझे लगता है कि बहुत एक कॉमन कंपैरिजन होती है, और एक्चुअली क्षितिज एक बार ऐसा ही हुआ था एक लिटरेचर फेस्टिवल में, मेरे को किसी ने बोला, खड़े होके एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि હું હજી મારા પપ્પાના જમાનાના ગીતો સાંભળું છું અને આજના જમાનાના ગીતો નથી સાંભળતું, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने कहा कई वांधो नहीं, તમારા દીકરાઓ મારા ગીતો સાંભળશે। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल के जमाने के जो गाने हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, पर उसका भी शायद ये रीजन हो सकता है कि अभी प्रोडक्शन भी ज्यादा है, मतलब I don't think so. I think every song has a destiny. बहुत सारे गाने पुराने जमाने के आपको याद नहीं होगी, बहुत खूबसूरत गाने, पर शेल्फ लाइफ की बात नहीं है, वो हर एक गाने की एक किस्मत, एक डेस्टिनी होती है। करेक्ट। मैं आपको मुकेश साहब के आपको गाने सारे याद होंगे, गुजरात में बड़े पॉपुलर है, मुकेश पुराने सिंगर्स में मुकेश इज मोस्ट पॉपुलर इन गुजरात। मुकेश सर के गाने पुराने आप देखोगे, आपको दर्द भरे गाने, राज कपूर के गाने, और वही आपको याद आएंगे। करेक्ट। बट उन्होंने कितने कमाल के ड्यूएट्स, कितने कमाल के इंटरेस्टिंग गाने भी गाए हैं, जैसे बीते नहीं रात सनम, कर कोई बात सनम, दुनिया सोए हमें नींद लगे ना, टाड़ाड़ंग। वो कितना फन, कितना प्यारा गाना है। मिले भी तो दूर से हम, कोई देखे ये सितम, मैं तो जागूं मेरी तकदीर जागे ना, बहुत प्यारा गाना है। या फिर मेरे ख्वाबों में ख्यालों में छिपे, एक दिन मीत मेरे, मेरी गली आप चले आएंगे। क्या गाने हैं ये, आपने नहीं सुना? अभी आप उन गानों की आप बोलेंगे शेल्फ लाइफ नहीं है, भाई क्या कर सकते हैं? वो नहीं है, कुछ गाने चलते हैं, कुछ नहीं चलते, कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ पे हर एक गाने की एक ये भाग्य है, तकदीर है, किस्मत है हर एक गाने की। तो आपने कभी सोचा था कि सेल्फी ले ले रहे गाना इतना पॉपुलर बनेगा? हाँ, मतलब वो एक्चुअली उस गाने की डिजाइन ही वैसी है कि वो पॉपुलर हो उसलिए लिखा है, वो बनाया ही वैसे गया है, और उसके पॉपुलर होने में बहुत बड़ा योगदान सलमान खान का है, बहुत बड़ा योगदान प्रीतम का है, उसके म्यूजिक का है, उसकी म्यूजिक की जो क्वर्कीनेस है उसका है। और मैं अपने आप को उसमें तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। तीसरा नंबर मेरा आता है कि हाँ, आप सोच नहीं सकते कि सलमान खान का इंट्रो गाना हो रहा है एक पिक्चर में और वो डांस कर रहा है और वो ऐसे वर्ड बोलेगा कि आपकी रहे अनुकंपा, ना डर है ना शंका, नाचेंगे हम जोर, या फिर लंदन हो या लंका, लंदन और लंका एक लाइन में, ये दो चीजें हैं। तो शायद आप नहीं ये गेस, तो वो क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही एक देखो फिल्म के गीतों में ना चमत्कृति होना बहुत जरूरी है। एक आपने अलंकार હોય છે ને, चमत्कृति, आदमी को एक चिंकारी होनी चाहिए। आपको उर्दू शायरी, उर्दू पोएट्री क्यों अच्छी लगती है? उसमें जैसे शेर खत्म होता है, सेकंड लाइन पे एक झटका आता है, वो बहुत जरूरी है। इट शुड बी सरप्राइजिंग, इट शुड बी फन। आपकी जब आपने अभी एक लाइन गुनगुनाई की तो किसी ने कमेंट किया है सर कि फैबुलस वॉइस। अरे मैं बहुत बेसुरा हूँ। तो उसका मतलब ये कि आप स्क्रीन प्ले के साथ साथ, डायलॉग्स के साथ साथ, लिरिक्स के साथ साथ आप सिंगिंग भी कोशिश कर सकते हैं सर? मैं सिंगिंग इतनी नहीं करता, मगर अपने सचिन जिगर है ना, वो बहुत बदमाश है, ठीक है, या जैसे फारा बहुत बदमाश है, वो लोगों से फिल्मों में एक्टिंग करा लेती है ना, ताकि लाइफ लॉन्ग उनको ब्लैकमेल करा सके कि देखो मैंने कितने गंदे लग रहे हो, तुम शूट कर लिया मैंने तुम। वैसे ही सचिन जिगर ने भी 2 गाने मेरे साथ में एज अ प्लेबैक सिंगर, नॉट द फुल सॉन्ग बट लाइक एज एन एडिशनल वॉइस दे हैव यूज्ड। ओके, तो पहला गाना है, हाँ, तो एक गाना है ABCD का, पहली ABCD का गाना है, सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान क्या, उसमें एक बीच में एक वोकल फ्रेज आता है, पता है, ठंडा रख ले जा, थोड़ा बर्फ पे किस ले भेजा, सॉरी ले जा, माफी दे जा, हमको फ्री, 1 2 3 सॉरी सॉरी। तो वो जो फ्रेजेस है वो मेरी वॉइस में। अच्छा।
हाँ, तो वो आई हैव डन। और उसके अलावा एक और गाना था सचिन जिगर का, पिक्चर वो बहुत चली नहीं थी, छोट डिशक्याओं नाम की पिक्चर थी, हरमन बावेजा था उसमें। उसमें एक गाना है कि तू मेरे टाइप का नहीं है रे, ऐसा एक गाना, तू मेरे टाइप का नहीं है रे, वैसा एक गाना है। उसके बिगिनिंग में एक ऐसा रेडियो वॉइस टाइप उन लोग को चाहिए था कि रेडियो में से कुछ बज रहा है और बहुत पुराने जमाने का मेलोडी और पुराने जमाने के वर्ड्स होने चाहिए। सो दैट इज इन माय वॉइस के रे ये जवानी की ओ रानी तू कहाँ को लिए जाए रे, हाँ जाए रे, आए जो निकट तो सभी के ही टिकट कट जाए रे, हाँ जाए रे। सो क्या बात है। sometimes ये I do these things. this was completely new to me. To everyone who's watching, if you have any questions for Mayur Puri, please post them here so I that also do we can uh, ask. I do whistling well. So Sachin has used me, Sachin Jigar, they have used me in whistling. In fact, Radio Mirchi का रेडियो जो मिर्ची का जिंगल है उसमें आपने सीटी बजाई थी, आई वाज गोना whistle कम टू मेरी दैट। that वो मैंने हाँ रेडियो मिर्ची। यस, तो जो सचिन जिगर की जो जिंगल है उसमें विशल आपने बजाई है, ये मुझे पता हाँ है। Superb. All right. So, screenplay, dialogue, lyrics, and there are so many things that you are known for or that you're credited for when it comes to Bollywood. मेरे हिसाब से एक स्पेशल अटेंशन या एक स्पेशल फोकस होना चाहिए हॉलीवुड की जो फिल्म्स आई हैं और उनको हमने जिस तरीके से ट्रांसलेट किया है, लायन किंग फॉर एग्जांपल, या मोगली, I think also the Pirates of Caribbean, if I'm not wrong. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो लास्ट वाला था वो मेरी थी। उसके अलावा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स, उसके अलावा मोआना, फाइंडिंग डोरी, ये सारी फिल्में, मेलिफिसेंट, ये सारी फिल्में मेरी हैं। So ये फिल्मों में आपने क्या किया? You translated the entire film as in the dialogues, or so how does it work? Just tell us. No. So basically पिक्चर तो रेडी होती है, उन लोग का कंटेंट, हॉलीवुड का कंटेंट, तो they call me, I go to their studio, I see the film once, एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ। लेकिन वो जो फिल्म मैं जो मुझे दिखाई जाती है, इट्स नॉट लाइक द फिल्म यू सी इन द थिएटर। वो उसकी बहुत ही पुअर कॉपी होती है क्योंकि वर्किंग कॉपी होती है। सो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें ऐसा मार्कर चलता है स्क्रीन पे, ऐसा बार बार ऐसा मार्कर बीच में चलता है, वाटर मार्क होता है, फिर ग्रेनी फुटेज होता है, मतलब बहुत कम आपको कई बार तो मार्वल के फिल्मों में तो कई बार खाली लिप्स दिखाई देते हैं, बाकी सब आउट फोकस होता है, यू कैन ओनली सी द लिप्स, क्योंकि आपको लिपसिंग करना है, राइट, आपको मैच करना है लिप, तो लिप वो लोग दिखा देते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये सीन में हो क्या रहा है। मतलब आपको एज अ डायरेक्टर भी सोचना पड़ता है, एज अ राइटर भी सोचना पड़ता है, एज एन एक्टर भी सोचना पड़ता है कि इसको उसने क्या एक्सप्रेशन दिया होगा, या क्या सोच के ये बोला गया है, क्या कहा गया है। और एक ही बार देखने को मिलती है वो फिल्म, तभी सारे नोट बना लिए, उसको समझ लिया पूरा अच्छे अपने दिमाग में। फिर आई कम बैक टू माई ऑफिस, और फिर यहाँ पे मेरे ऑफिस में ऑन मेल, or not only on mail, I cannot even access the script, I cannot download the script, there is a special link created, there's a special system on which online you can write. So basically वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मेरे पास में होता है, और फिर मैं एक लाइन को, बट मैं अडेप्ट करता हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ, मैं इमोशन ट्रांसलेट करता हूँ। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ओरिजिनल राइटर है, अगर मैं जंगल बुक लिख रहा हूँ तो जॉन फेवरू जो उसके ओरिजिनल डायरेक्टर है, या जो ओरिजिनल उन्होंने जो नया से स्क्रीन प्ले अडेप्ट किया, वो कौन से सीन में कौन सा इमोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई ट्रांसलेट दैट, तो मेरे ऑडियंस के लिए वो इमोशन कैसे अच्छा लगेगा, वो इम्पोर्टेंट। सो आई ट्राई टू डू दैट, और अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब 4 साल में 14 फिल्म कर चुका हूँ। वाओ। या एंड इससे, और मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लेजिटिमेट और बहुत ही अच्छा काम है, और इससे हमारी डबिंग इंडस्ट्री को, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हर कोई आदमी तो क्या बोलते हैं, वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ नहीं बन सकता है ना, हर एक लड़की तो तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नहीं बन सकती, उसको मौका नहीं मिलेगा, मगर वो वॉइसिंग कर सकती है, या वो वॉइसिंग कर सकता है, वॉइस आर्टिस्ट बन सकता है, और वो भी एक्टिंग है, बहुत अच्छा काम, बहुत मेहनत का काम है, और धीरे धीरे अब वो बहुत फेमस होने लगे, अब तो उनके फैन क्लब्स होने लगे। राजेश खट्टर है जो हमारे आयरन मैन की वॉइस करते हैं, उनकी फैन क्लब्स हैं, लोग इतना उनको पसंद करते हैं वॉइसिंग में। सो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने आप में बहुत वॉइस आर्टिस्ट हैं। ये इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देना चाहिए हमको। हमारे यहाँ जब फिल्में लगती हैं तो हिंदी में देखनी चाहिए, ताकि वो प्रोड्यूसर जो है, जो बड़े बड़े स्टूडियोज है, वो हिंदी वर्जन पे खर्च करें। आप देखिए, हम लोग हिंदी वर्जन में इतना पैसा उनको कमा के दे रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं,
जंगल बुक जो थी 180 करोड़ का बिजनेस किया उसने इंडिया में, 180 में से 100 करोड़ हिंदी वर्जन का बिजनेस, जबकि हिंदी वर्जन पे उन लोगों ने ओरिजिनल जो फुल फिल्म है उसके बजट का 0.5% इन्वेस्ट नहीं किया होगा, राइट। मगर इंडिया में उसने 100 करोड़ कमा के दिए उनको। तो हमारे इंडस्ट्री को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट की, इसीलिए मैं जानबूझ के बॉलीवुड का काम कम करके और ये कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये करीब करीब 3,000-4,000 वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, स्टूडियोज हैं, सबके लिए ये जरूरी है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी आगे बढ़े। और बहुत लोगों को मैं अगर ये एक फिल्म करता हूँ तो 500 लोगों का घर चलता है, उनको फायदा होता है। अगर मैं एक हिंदी फिल्म लिखता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, कोई और भी लिख लेगा, इट्स ओके। ईशान की कमेंट है, क्षितिज हैज अ वेरी ग्रेट वॉइस मयूर सर। यस, तो नाउ क्षितिज शुड सिंग, अब क्षितिज को गाना चाहिए। वो डबिंग के लिए वो हॉलीवुड में बुला रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं हॉलीवुड चले जाओ। So there is No, also a question. you sing well, you play guitar. तुम तो बड़े मल्टी टैलेंटेड हो ना क्षितिज, like you can do so many, you are a RJ, you are a fantastic host, so many things you do. बस अभी बॉम्बे आ रहा हूँ मैं अगले वीक से, लॉकडाउन खत्म हो जाए तो लॉकडाउन खत्म, come to बॉम्बे। So what is the main difference between real life and real life? I think everybody knows कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या क्या फर्क है। मतलब अगर पर्सनली मेरी बात करो तो मेरी अपनी जिंदगी बहुत फिल्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म। कहाँ कलोल में रहने वाला एक छोटा सा लड़का लैंडेड अप इन बॉम्बे, और जिन लोगों, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत वक्त लगा, मतलब मैं स्कूल में शाहरुख खान की फिल्म देखता था, सलमान खान की फिल्म देखता था, आई वाज जस्ट अ चाइल्ड। कॉलेज में आया और कॉलेज से निकल के 2-4 साल बाद आई वाज वर्किंग विद दीस पीपल। मैं सलमान के लिए गाना लिख रहा हूँ, मैं शाहरुख के साथ बैठा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ। Sometimes it's surreal, sometimes it's like you can't believe that this is really this is happening. Is it true? Amitabh Bachchan has put his hand on my shoulder and is walking with me very excited like a child because it's his son's birthday, और हम लोग अभिषेक को सरप्राइज करने वाले हैं, और स्टूडियो के पुराने छोटे से गलियारे के अंदर से मिस्टर बच्चन मेरे कंधे पे हाथ रख के अंदर आ रहे हैं, और मैं उनको लेके जा रहा हूँ, सर यहाँ चलिए यहाँ चलिए। व्हाट अ मोमेंट इट इज हर एक की लाइफ में। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना है, तय करना, रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है। I think in real life also everything has to be believable, you have to make it believable, everything can be real। मेरे लिए धूम के अंदर वो ट्रेन पे से बाइक जंप करके चले जाता है, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको बिलीवेबल बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि वो बिलीवेबल है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं। बाय द वे वो जंप रियल है, एक वन एक्चुअल बाइकर डिड इट, इट्स नॉट VFX। Oh, is it? Yeah, so I'm saying that there are things which are possible and you can do। so real life और real life में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मेरी लाइफ फिल्मी हो, मेरी रियल लाइफ भी रियल लाइफ की तरह ही हो, ऐसे ही आओ ऐसे ही जाओ, मतलब लोग देखते रह जाएंगे क्या लाइफ है। वैसे देखा जाए तो अभी जो हम जी रहे हैं वो एक मूवी से कम नहीं है, मतलब no one would have thought that Exactly. almost the entire world would be confined in the four walls of their home for more than a month. नवंबर लास्ट ईयर अगर किसी ने आपको बोला होता कि आप 2 महीने घर में बैठने वाले हो, can you imagine? You would be like पागल है क्या? Impossible. Very true. So there's a question. Let me. निकुंज is asking, सर मैं भी लिखता हूँ बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब लिख नहीं पाता। ऐसी प्रॉब्लम आपने भी स्टार्टिंग में फेस की होगी, आपने कैसे इसे सॉल्व किया, किस तरह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो? आई थिंक राइटर्स ब्लॉक के बारे में। मैं बिगिनिंग में ना, मुझे राइटर्स ब्लॉक वगैरह बिल्कुल लगता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत गरीब था, टू बी ऑनेस्ट। चंद्रकांत बख्शी जो गुजरात के बहुत बड़े राइटर हो गए, उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मूडीवादी लेखकों ने पोसा है, मूडीवादी लेखकों ने पोसा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा तो हमेशा मूड रहता है लिखने का, क्योंकि मुझे काम करना है। बट आई अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ टाइम्स despite everything you might have a writer's block. There are two kinds of, if you want to research a little bit, मैं अभी इतने छोटे सेशन में बता नहीं पाऊंगा। There are internal causes, there are external causes. External causes can be a breakup, bad health, bad finances, any kind of external pressure, noise outside, आप जिससे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से शायद आप ना लिख पाए, या फिर इंटरनल प्रेशर जो है वो एक अपने आप में एक अलग पूरी चीज है। व्हाट आर द मेंटल ब्लॉक्स दैट आर
stopping you from writing. तो दोस्त उसमें बहुत सिंपल सा है कि I do a full workshop, I do a 26 lectures का workshop, उसमें से 2 दिन मैं सिर्फ writers block के लिए रखता हूँ. It's a very, like, we do a lot of activities and we do a lot of tasks in my boot camp, and then we try to tackle writer's block for everyone. But मैं छोटे में गोली बना के दे दूँ तो बहुत सिंपल सी बात है. राइटर्स ब्लॉक ये करने से, वो करने से, पढ़ना करने से, डिगना कर, किसी चीज से नहीं जाएगा. राइटर्स ब्लॉक एक ही चीज से जाएगा, एंड दैट थिंग इज राइटिंग. लिखने से ही राइटर्स ब्लॉक जाता है और कुछ नहीं होता है. खुद को बहुत प्रेशराइज नहीं करने का. कभी कभी सरस्वती बैठती है, कभी कभी सरस्वती नहीं बैठती, तो दुख नहीं लगाने का. अंडरस्टैंड कि a story or an inspiration or a thought is like a butterfly. It's going to be fluttering around in the atmosphere around you, right? You cannot catch it. You have to become one with the atmosphere. You have to put your hand out and let that butterfly come and sit on your hand. The story has to choose you. You don't choose a story ever. You never choose a story. The story chooses you. क्या बात है, wonderfully said. Tirth is asking question. I'm writing a novel which is based on a true story. In this, me including some self-created poems also. Please give suggestions to add some comic sense to it. Sorry, you are writing something on a true story. Okay. Well, I like to tell you only one thing, that people are interested in stories. It doesn't matter whether they are true stories or they are not stories. But अगर एक, because हम लोग बोलते हैं ना, life is stranger than truth is stranger than fiction. लाइफ अपने आप में इतनी कमाल है कि कई बार हमको we cannot imagine कि ऐसा हो सकता है, और वो शायद फिक्शन में आप सोच ना पाए मगर रियल लाइफ में होता है. सो नथिंग रॉन्ग तीर्थ टू बेस योर स्टोरी. और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आप कंप्लीटली फिक्शन भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट योर कैरेक्टर्स यू शुड बेस ऑन सम रियल पर्सन. थोड़ा बहुत रियल पर्सन का आपके कैरेक्टर में होना जरूरी है, थोड़ी बहुत रियलिटी होना बहुत जरूरी है. लाइक ओम शांति ओम में किरण खेर's कैरेक्टर इज माय मॉम. लिटरली शी इज माय मदर. It's exact. Yeah. My mother is crazy, Kshitij. My mom is so filmy, and I love my mom because मैं जो भी हूँ, because of, if I have good language, it's because of her, because she's so funny. तो 2 साल पहले वो यहाँ पे आई, ठीक है. तो मेरी वाइफ को उन्होंने बोला कि मयूर के लिए नाश्ता कल मैं बनाऊंगी. I said very good. तो उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू किया. उन्होंने मेरे को नींद से उठाया, बोला चल बेटा जल्दी ब्रश कर ले, आज मैंने तेरे लिए खाना बनाया. मैंने कहा ठीक है. मैं बैठ गया नाश्ता करने के लिए. मम्मी मेरे पीछे आके खड़ी है ऐसे. मैं देख रहा हूँ और मम्मी वेट कर रही है कि मैं कब पहला बाइट हूँ. जैसे ही पहला बाइट मैंने लिया और बनाया, मतलब ऐसा कुछ ग्रेट कुछ नहीं था, पोहा था, पौवा बनाया था. विजू का खास ना, तो पौवा था, सेव थोड़ी करती, बस पौवा. आई हैड माई फर्स्ट बाइट एंड माई मॉम इज लाइक, बेटा कैसे बने पोहे? आई सेड नाइस मॉम, पोहे अच्छे बने. एंड माई मॉम सेज, लिसन टू दिस, माई मॉम सेज, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे पोहे पसंद आ गए. Who does that? That's my mom. She is so sweet that she is very filmy in her expression. वो बहुत फिल्मी है. तो मैं तो बोल रहा हूँ रियल लाइफ से ज्यादा फिल्मी कोई चीज है ही नहीं. I would expect your story to become very unbelievable because that's how life is. That's what it should be. So, what do you think is happening in Bollywood during the lockdown? आपको लगता है कि ये लॉकडाउन से obviously इंडस्ट्री को impact तो हुआ ही है, सभी इंडस्ट्रीज को हुआ है, but what do you think is the way forward now? So I'm attending a lot of webinars. हम लोग का almost every day इंडस्ट्री का insiders का एक get together होता है, webinar होता है. तो और हम लोग रोज डिस्कस करते हैं. there are on different webinars on different panels. I am talking to distributors, exhibitors, actors. कल हम लोगों का एक वेबिनार था, ओनली क्लोज्ड कॉन्फ्रेंस, सब लोग के लिए ओपन नहीं था, ओनली इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स वर देयर. और उसमें अभिषेक बच्चन से लेके संजय गुप्ता, संजय गढ़वी जैसे फिल्म मेकर्स, अनुराग कश्यप, ये सब लोग भी थे. और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे, एग्जिबिटर्स भी थे, साउथ से, पूरे इंडिया से. और ये रोज ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे ये हो रहा है. हम लोग बातें कर रहे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं. couple of things are already in progress and they might be very interesting for the industry. But मैं अंदर की बात बताता हूँ. अंदर की बात में क्या है कि जो साउथ के प्रोड्यूसर और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं. उनको ये लगता है कि उनके पास में फिल्मों का लाइनअप भी है, ये सब भी है. तो जब भी थिएटर्स खुलेंगे, इट कुड बी सितंबर, इट कुड बी अक्टूबर, जब भी खुलेंगे, hopefully Diwali, let's have a nice Diwali in theaters, hopefully. But if that happens, then people will come back to the theaters and they will all make good money. That's what they think in South. हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सिनेमा ओनर्स हैं या जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशंस हैं, वो थोड़े डरे हुए.
They are afraid that people might not want to go to the theaters immediately. ये वो चीजें हैं. But आपने देखा था दारू की दुकानें खुली थी तो क्या हुआ था? हम गुजरात वालों को सर उससे फर्क नहीं पड़ता. घर बैठे मिलता है तुम लोग को. No comments on that. Lockdown will affect the small producers. It will affect independent producers. अगर आप independent film बनाना चाहते हैं, गुजराती industry might get affected a little bit, or it might be a resurgence of great films. मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी प्रॉब्लम होती है उसके बाद में ये इंडस्ट्री और ये क्राफ्ट जो है ना, ये ऑटोनोमस है, ये अपने आप में बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये अपने आप रास्ता निकालता है. जब अमिताभ बच्चन की पिक्चरें नहीं चल रही थी, तब साउथ में जितेंद्र लेके आए मवाली और अकलमंद और इस टाइप की हिम्मत वाला टाइप की फिल्में, और चली इंडस्ट्री. जब बड़े बड़े हीरोज नहीं, जब बड़े बड़े हीरोज की पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, तब मिथुन चक्रवर्ती ने पिक्चरें की, वो ऊटी में जाके और 2 महीने के अंदर शूट करके, और बहुत सारी. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बहुत ग्रेट क्वालिटी की फिल्म थी, बट जहाँ इंडस्ट्री को सर्वाइव करना होता है वो करती है. और लोगों को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए. तो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरियस स्टफ तो आप ओटीटी पे भी देख लोगे, इंटेलेक्चुअल बातें आप ओटीटी पे भी देख लोगे, ओ बहुत फैंसी, बहुत स्टाइलिश हो, क्या बोलते हैं उस टाइप के फूफा शूशा टाइप के शोज होते हैं. लेकिन अपना देसी दाल भात की पिक्चर जो होती है, जो मजा आता है देख के, ताली बजाने को मन करता है, वो तो थिएटर में मिलेगी ना आपको. तो वो बनेगी और वो चलेगी. क्योंकि आपने ओटीटी मेंशन किया है, नाउ आई ऑब्वियसली ऑल द यंगस्टर्स वी लव टू वॉच अ लॉट ऑफ दीस सीरीज. बहुत मजा आता है देखने में, बिंज वॉच करने में मजा आता है. बट यू नो देयर इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज बॉदर्स मी. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अगर गाली नहीं बुलवाओगे तो भी चलेगा. मतलब कुछ सीरीज ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि हम मम्मी पापा के साथ या फैमिली के साथ बैठ के देखें, पर ओटीटी का यही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे वांट अस टू ओनली वॉच इन वन स्क्रीन and not all of us on a bigger screen. Do you think that is true? Do you think we can do something about this? So sometime back I had this interaction with a big OTT platform people. I don't want to name them. Netflix. But I was talking to them and I said कि तुम लोगों ने क्या इंडिया में ऐसे शोज बनाए, हर शो में गालियां होती है, ये होता है, वो होता है. तो उन्होंने बोला कि हमने पहला सीक्रेट गेम्स बनाया और उसमें थी गालियां और वो चला, लोगों को पसंद आया, बहुत स्ट्रीमिंग ज्यादा थी, ये थी वो थी, हमको लगा यही सही है, तो हमने वैसे ही बना. सो अनलेस, तो दिस होल, देखो प्रोग्रामिंग का जो पूरा मामला है वो कैसा है मालूम है? वो प्लेन लैंड, मैन्युअली प्लेन लैंड करते हैं ना, वैसा सिस्टम है. यानी कि थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, ये लेफ्ट में ज्यादा हो गया, थोड़ा राइट, ये कांस्टेंट चलता रहता है. एक शो ऐसा बना, एक शो ऐसा बना, चाहिए इसमें ये चीज चली, इसमें ये चीज चली, दोनों को मिक्स करके ये वाला बनाते. दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग. तो आप मत देखो ना, जो आपको गालियों से पसंद नहीं है, उस टाइप के शोज पसंद नहीं है, अगर आप नहीं देखोगे, इस बीच में कोई व्यक्ति ऐसा शो बनाएगा पंचायत जैसा, ठीक है, जो चलेगा, सब लोग उसको देखेंगे, करेक्ट, तो देन दे विल मेक मोर ऑफ दोस शोज. सो इट्स अ मैटर ऑफ, वो धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा. अभी थोड़ा क्या है, नया है ना इंडस्ट्री, भी नया नया ओटीटी है, तो वो लोग भी सीख रहे हैं, उनके दूध के दांत है. पंचायत में भी गाली थी सर, बच्चा है गाली देता है. पंचायत में भी गाली है, पंचायत में भी गालियां हैं. अच्छा, हाँ, ओके 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 ओके. बट आई थिंक दैट इट वाज स्टिल नॉट सो बेरेबल. एंड माय प्रॉब्लम इज कि चलो अगर गाली रखनी भी है तो बीप का ऑप्शन रखो ना भाई, कि वो गाली में बीप कर दो ना. जैसे टेलीविजन पे जब हम कोई हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो आइदर दैट इज blanked out or there is a beep. I don't have a problem with realistic characters or the language. मतलब वो लोग ऐसे ही, मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ. पर when you talk in a group with a family तो थोड़ा सा I think that can be probably I think हम लोग अपनी लाइफ में अभी हाथ धोना सीख गए, सैनिटाइज होना सीख गए. मुझे लगता है कंटेंट भी सैनिटाइज हो जाएगा धीरे धीरे. कंटेंट की सैनिटाइजेशन की भी जरूरत है. There is tell us one incident or a secret about Om Shanti Om which people do not know. Oh, what have I not said in interviews before? Or there are lots of things actually. Om Shanti Om ka, you know what we should do? Om Shanti Om DVD पे ऐसे लगा के, and I should give a commentary about each scene. Then you will know. But there is one thing which I'll tell you. In the beginning of the film, there is that scene where Om Prakash Makhija and Pappu, they are sitting at the canteen, ठीक है,
और वो बोलता है यार पप्पू मैं हीरो बनूंगा ना, बोलता है अरे क्यों नहीं तू हीरो बनेगा, तेरे पास फेस है, ग्रेस है, स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, कूट कूट के बराबर टैलेंट है, तू जरूर हीरो बनेगा, बस एक ही चीज है जो तुझे हीरो बनने से रोक रही है। बोलता है क्या? बोलता है तेरा नाम। फिर वो कैंटीन वाला बोलता है ओम प्रकाश मखीजा, इतने टाइम का उधार बाकी है ये व्हाटएवर। नाउ दे सिट एंड दे आर हैविंग क्रीम रोल, उसमें बड़े स्मार्टली प्लांट किया हुआ है कि तो क्रीम रोल तेरा कौन सा इस जन्म का है, यू नो बोलता है हिसाब कब पूरा करोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में? बोलता है तेरा क्रीम रोल कौन सा इस जन्म का है। So we are very subtly planting what kind of a film this is. This is very good trick when you are writing. Very early to give premonition. I did that in Selfie Le Le Re also. Selfie Le Le Re में एक लाइन है जहाँ पे वो बोलता है कि तू ही नौटंकी मेरी, तू ही सनीमा, तू मेरे साथ गर हो, तू ही पढ़ाई मेरी और तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा, तू मेरे साथ गर हो, रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा, तू मेरे साथ गर हो। बेसिकली वो क्या होने वाला है वो सटनली बता दिया है, इसको आगे बता दिया है। वाह। फोर शैडोइंग बोलते हैं। तो मैं ये जब कैंटीन वाला सीन लिख रहा था तो उसमें फोर शैडोइंग तो था, तो फोर शैडोइंग वगैरह वाज फनी, पर हमको पता नहीं था ये लोग यही लाइनों पे हंसेंगे, हम तो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो इन्फॉर्मेशन है, अब कॉमेडी क्या होनी चाहिए। तो मैंने लिखा था कि वो बोलता है एक लड़का जा रहा है, बोलता है इसको देखिए विरार से आता है स्ट्रगल करने के लिए, विरार से स्ट्रगल फेंकने के लिए आता है, ऑब्वियसली द होल ऑडियंस नोस हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो टर्न करता है, बोलता है इधर आ बच्चे, क्या नाम है तेरा? तो बोलते हैं गोविंदा आहूजा। तो बोलता है कि बोलते हैं तो आई हैड रिटन द डायलॉग वेयर ओम प्रकाश मखीजा से नाम है कि इल्जाम है। नो, इल्जाम इज गोविंदास फर्स्ट फिल्म। सो फरहा ने बोला नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कर, गोविंदा विल फील वेरी बैड इफ यू राइट यू नो कि नाम क्या है तेरा, बोलता है गोविंदा आहूजा, नाम है कि इल्जाम है। तो वो लाइन हम लोगों ने डिलीट कर दी, मगर मुझे अभी भी वो मतलब व्हेनेवर आई सी दैट सीन इन माय माइंड दैट लाइन कम्स, नाम है कि इल्जाम है। आई फाइंड इट डैम फनी, बट एनीवे। So तो Govindas की ओम शांतियों में जितने जोक्स है ना उससे ज्यादा जोक्स नहीं है जो अच्छा बाहर है, हाँ, जो हम लोग नहीं कर पाए वैसा है। why indie movies are not given wide releases? I think worldwide इंडिपेंडेंट release. मूवीज आर नॉट गिवन वाइड रिलीज। ऑब्वियसली आपको इस सवाल का जवाब पता ही है, आप सिर्फ कंफर्म करने के लिए मुझसे पूछ रहे हो, बट द थिंग इज दैट द स्टूडियोज एंड मल्टीप्लेक्सेस दे हैव अ नेक्सस। ओके, आप एक बात समझ लीजिए, बिजनेस हो गया फ्राइडे सैटरडे संडे का, 3 दिन का वीकेंड का बिजनेस हो, साल में 52 हॉलीडे है, 52 वीकेंड है, करेक्ट? सो 52 वीकेंड्स, हर वीक एक फिल्म रिलीज होती है, करेक्ट? 52 weekends, there are at least 300 Hindi movies being made. There are at least 800 to 1,000 बाकी की नॉन हिंदी फिल्म्स बीइंग मेड, आउट ऑफ विच 200-300 मूवीज आर बिग इनफ टू हैव अ कंट्री वाइड रिलीज। अगर आप एक मगधीरा बना रहे हैं या बाहुबली बना रहे हैं तो पूरे इंडिया में रिलीज होगी, करेक्ट? 2.0 बना रहे हैं पूरे इंडिया में, तो इट्स अ पैन इंडिया मार्केट का स्टोरी। सेम थिंग हैपेंस विथ हिंदी बिग फिल्म्स आल्सो। 52 वीकेंड्स पे हम लोग 250-300 ये फिल्में, 250-300 ये और 250-300 हॉलीवुड, 1000 फिल्मों को 52 फ्राइडे में रिलीज करना है, कैसे स्क्रीन मिलेंगे सबको? कैसे होगा? इंडिया में है ही मर मर के 10,000 स्क्रीन नहीं है अभी हमारे पास इंडिया में। चाइना में 60,000 स्क्रीन है और हम चाइना के जितने ही है ना, टेक्निकली हम और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं है। तो उनके 60,000 स्क्रीन है तो अपने आप 50,000 तो स्क्रीन होने चाहिए, अपने यहाँ 10,000 नहीं है, मर रहे 10,000 स्क्रीन भी टोटल नहीं है। So we need more screens, then indie movie will get wider release. We cannot right now, it's a big bottleneck. बेसिकली वो ट्रैफिक का बॉटल नेक नहीं होता है, 4 जगह की लेन जब मर्ज करते हैं ऐसा 2 लेन में आ जाता है तो ट्रैफिक में बॉटल नेक हो जाता है, वो बॉटल का नेक की तरह बंद हो गया। तो 52 फ्राइडे पे जाके सब पिक्चरें अटक जाती है, तो फिर स्क्रीन बढ़ जाते हैं, शोज बढ़ जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट फिल्मों को, छोटी फिल्मों को उतना ज्यादा वाइड रिलीज नहीं मिल सकता, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इसके लिए जिन्हें क्या है ना घर मुड़ती, विल हैव टू चेंज द सिचुएशन, विल हैव टू हैव अ पैरेलल इंडस्ट्री जहां पे इंडी फिल्में डायरेक्टली, आप सोचिए कल ही अनुराग कश्यप के साथ में हमारी बात हो रही थी ऑनलाइन ग्रुप के अंदर, और वो बता रहे थे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में रिलीज नहीं हुई। बोला मैंने मुक्काबाज बनाई और वो मुक्काबाज जिन शहर में जानी चाहिए, वो यूपी बिहार की पिक्चर है, वो वहां नहीं रिलीज हुई। सो क्या फायदा? बट आई ब्लेम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। आप फिल्म ऐसी बनाओ ना उस ऑडियंस के लिए और उस तरीके से कि वो वहां पे रिलीज हो। आप थोड़ा सूडो मेंटालिटी रख के कि मैं क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने के लिए पिक्चर बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा माइंड में मत रखो ना। अच्छा, so you since you started out from Ahmedabad,
anything in the pipeline where you are getting associated with the Gujarati movie industry? Gujarati movie industry में नहीं, I have not really contributed anything क्षितिज, जो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात को लेके. Honestly speaking, मेरा मैं काम नहीं करना चाहता गुजराती इंडस्ट्री में, मतलब काम लेना नहीं चाहता, काम देना चाहता हूँ. कभी मेरे पास में इतने पैसे हुए तो मैं शायद प्रोड्यूस करूंगा, शायद मैं गुजरात से ही लोगों को लूंगा, गुजरात के म्यूजिशियंस, गुजरात के राइटर्स, गुजरात के एक्टर्स, और जो गुजराती ही सेट डिजाइनर, गुजराती ही कॉस्ट्यूम, गुजरात completely homegrown Gujarati film. I would love to produce that. I would love to have enough money to be able to do that. मगर मैं वहाँ आऊँ और लिखना शुरू करूँ तो मैं किसी गुजराती राइटर का हक छीन रहा हूँ. मुझे जरूरत नहीं है वो करने की, मुझे वो नहीं करना चाहिए. It doesn't suit my stature. I should not do it. मुझे उनको काम मुहैया कराना चाहिए, अवेलेबल कराना चाहिए. तो मैं मिलवाता हूँ जो गुजराती प्रोड्यूसर्स या गुजराती लोग मेरे पास में आते हैं. They are looking for talent. Then I tell them आप इस लड़के के साथ में काम कर लीजिए, इसके साथ ये हो सकता, ये आपको म्यूजिक अच्छा बना देगा, ये आपको लिरिक्स अच्छा कर देगा, या ये एक्टर अच्छा है, फला फला. तो मैं ऐसी थोड़ी बहुत जो हेल्प, या उनको मैं स्टोरी में, बहुत फिल्मों में मैंने हेल्प किया है कि वो लोग स्टोरी में लेके आए, मेरे को नरेशन किया, मैंने उनको बोला नहीं ऐसे नहीं. और ये मैं हिंदी फिल्मों में करने के लिए बहुत पैसे लेता हूँ, एक दिन का 1 लाख रुपए लेता हूँ मैं, जस्ट टू डू स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग. मगर मैंने कभी आज तक किसी गुजराती फिल्म में पैसे नहीं लिए. आई हैव had so many Gujarati filmmakers come to me. I will give you 2 days, 5 days, 10 days, जितने दिन की जरूरत हो, बैठो, डिस्कस करो, and as much I can suggest, I will suggest, and you don't have to pay me. So I do that, but I don't want to write. It's not correct. मेरे लिए ठीक नहीं होगा. एक क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसा कहता है कि there's a request to sing a few lines of कहीं दूर जब दिन ढल जाए. डॉक्टर तीर्थ कह रहे हैं. नहीं, वो किशोर कुमार का गाना है, किसी की, मेरी कोई औकात ही नहीं है गाने की. आप क्या बात कर रहे हो? It's not possible for me. After lockdown, will you write something funny about the lockdown? I don't know. I don't know. I don't know what I'll be doing after lockdown. I don't believe in making very long term plans. अभी मैं फिलहाल कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो खत्म कर रहा हूँ, और उस स्क्रिप्ट में भी ऐसा लॉकडाउन का कोई जिक्र नहीं है. There is no reference or no mention of lockdown. और मैं जबरदस्ती लॉकडाउन को अपनी कहानी में घुसेड़ना नहीं चाहता, because that will become inorganic. So I don't know. और मुझे लगता है मुझे ना बहुत ये लगता है कि पूरी हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है ना, वो ये लॉकडाउन को निचोड़ने में लगी पड़ी कि ये लॉकडाउन के अनुभव से मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं दुनिया में कुछ क्रिएटिव डाल दूं. अरे शांति रखो ना यार. जरूरी नहीं है हर चीज जो आपके साथ हो रही है उसको आर्ट में तब्दील करना. आपकी जिंदगी में जो आपका अनुभव है, हर एक अनुभव का तर्जुमा आपकी राइटिंग में, आपकी क्रिएटिविटी में हो, जरूरी तो नहीं है. बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मैं लॉकडाउन में बहुत हैप्पी हूँ. मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिल्म देखता हूँ. पुरानी फिल्मों का फेस्टिवल चल रहा है मेरे घर पे. हम लोग रोज एक पुरानी फिल्म देखते हैं. खाना खा रहे हैं बहुत बढ़िया. मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, ग्रेट कुक है. आई एम रियली, एंड वॉट एवर वेर एवर आई कैन हेल्प पीपल आउटसाइड द लॉकडाउन, जो मेरे जितने प्रिविलेज्ड या फॉर्चुनेट नहीं है, जो बहुत बहुत बुरे हालात में गुजर रहे हैं. I don't want to talk about it, but I try and help जो मैं कर सकता हूँ, जितना एक इंसान होने के नाते करना. मुझे लगता है मेरा और लॉकडाउन का रिश्ता इतना ही काफी है, और जितनी जल्दी हो सके मैं इसे भुलाने की कोशिश करूँ. I will want to move on from the lockdown and become normal, जो जैसे अपनी normal life. So this session is also being streamed live on YouTube. Okay. Hello YouTube. and so it is going to remain on YouTube. So I shouldn't have spoken so many secrets and so many things. I will charge a special amount to delete that from YouTube. We'll discuss that offline. But on a serious note, so how do we or can you guide especially youngsters who are still in college or school who want to start their career in writing? Number one is कैसे शुरू करें? Yeah. Number one is the decision, the intention. Firstly, you have to know, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बोला था कि हॉबी है, सीरियस हॉबी है कि प्रोफेशन है. अगर प्रोफेशन है तो रोज करना पड़ेगा भाई. बीइंग अगर कुछ और कर सकते हो लाइफ में तो राइटर मत बनो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि राइटर बनना मतलब इट इज होमवर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. पूरी जिंदगी होमवर्क कर पाओगे? सोच लो. रोज बैठ के लिखना पड़ेगा घर पे. ये बहुत अच्छी लाइफ नहीं है भाई, पर करना है. हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं. अगर मैं नहीं लिखूं तो मर जाऊंगा. लिखना मेरे लिए उतना जरूरी है. इट इज सो इम्पोर्टेंट अ पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस दैट अगर मैं नहीं लिखूंगा, रोज कुछ नहीं लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा. पिछले साल या पिछले से पिछले साल मेरे असिस्टेंट्स ने एक कोलेट किया था डेटा
कि मैंने कितना लिखा है। तो साल भर का डेटा कलेक्ट किया था, तो सारे पेजेस इकट्ठे किए, जब फाइलें गिनी तो पता चला 3,500 पेज हुए। 350 दिन होते हैं साल में, 365, और 3,500 पेज मैंने लिखे थे। जो पेज लिखते हैं वो सारे के सारे बनते नहीं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि आई एम अ सक्सेसफुल राइटर, मगर फिर भी ओनली 10% और 5% ऑफ व्हाट आई राइट एक्चुअली कम्स ऑन स्क्रीन। बाकी की चीजें नहीं बनती है, फॉर वॉट एवर रीजन नहीं बन, बहुत सारे कारण नहीं बन पाती है और वो रह जाती हैं आपके पास में। सो दैट्स हाउ द थिंग इज। हर एक बॉल पे तो सचिन तेंदुलकर भी 6 नहीं मारते, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप मेंटली बहुत प्रिपेयर होना जरूरी है बीइंग अ राइटर। राइटर होने का काम 90% मेंटल है, 90%, 10% फिजिकल, जो लिखना है या टाइप करना है वो तो है ही, मगर मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि मैं पूरा दिल पूरी मेहनत के साथ में लिखूंगा, और हो सकता है फिर भी उसका कुछ ना हो सकता है नोबडी गेट्स टू नो व्हाट आई हैव रिटन, वो कई बाहर ही ना आए, ऐसा हो सकता है। एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज, जब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस सब के बावजूद मैं मोटी चमड़ी का हूँ, मुझे राइटर बनना ही है और मेरे लिए और कोई चारा ही नहीं है, मेरा एक्सप्रेशन सिर्फ राइटिंग के थ्रू ही बाहर आ सकता है और मैं रोज मरने के लिए तैयार हूँ लिखने के लिए, वो सिचुएशन है, तो सबसे पहले ढिंडोरा पीट दो, सबको बता दो, पूरी दुनिया में सबको बता दो मैं राइटर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। फिर नहीं लिखोगे, फिर खुद के ऊपर गुस्सा आएगा, घृणा आएगी, अपने आप से इरिटेशन होगा, आते जाते दोस्त छेड़ेंगे और क्या लिख रहा है आजकल, पता चलेगा एक्चुअली तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो बोल दिया लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर उस नफरत, उस घृणा, उस गुस्से, उस आक्रोश में से डेस्परेशन आएगा कि शिट आज तो बैठ के कुछ लिख ही डालता, फिर लिखोगे और अच्छा ही लिखोगे। तो धीरे start writing, that's the only thing. Right. I think we've almost been here for about 50 minutes, and I'll take 5 more minutes. If there are any questions, you can shoot them right away, all the attendees. अगर आपके कोई सवाल है, आप मयूरपुरी सर से पूछना चाहते हैं। Me and RJ क्षितिज both are looking something for voice over, कुछ हो तो बता दो। कौन बोल रहा है? ईशान बोल रहा है। ईशान, तूने ये उसी लिए तो ऑर्गेनाइज नहीं किया है पूरा चक्कर। If we wanted to live a full king size life, my idea to ignore the world's क्रिटिक्स, करेक्ट है, सही बात है यार। क्रिटिक आपके घर का राशन नहीं चलाते, ऑडियंस चलाती है। ऑडियंस आपको आके पैसा देती है, ऑडियंस की वजह से जो है वो चलता है। क्रिटिक क्या है? क्रिटिक्स थोड़ी आपके घर पे आके बिजली का बिल भर देते, वो तो आपका ऑडियंस ही भर रहा है। आपने अभी ऐसा कहा कि लिखते जाओ, रोज लिखते जाओ, आप अपना जो क्राफ्ट है उसे मास्टर करो, सही बात है, पर किसे दिखाओ, कहाँ पे दिखाओ? सो देखिए, जब मैं बॉम्बे आया तो उस वक्त और कोई चारा नहीं था। देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नो इंटरनेट एज सच। लेट 90s इंटरनेट आ चुका था लेकिन यूट्यूब नहीं था। एंड अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ या मुझे फिल्म मेकिंग करना है, मुझे कुछ बनाना है, मैं दुनिया को अपना क्राफ्ट कैसे दिखाऊं, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू कम टू बॉम्बे, क्योंकि जो बड़े कैमरास होते हैं फिल्म शूटिंग के लिए वो सब यहाँ पे थे, वहाँ अहमदाबाद में कलोल में थोड़ी कुछ था। आजकल तो आप ये फोन है, फोन के अंदर यू कैन शूट HD क्वालिटी, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट क्वालिटी का आप फोन में शूट कर सकते हो। तब नहीं था ये अवेलेबल, तब कैमरास करोड़ों रुपए के आते थे। तो एक स्ट्रगलिंग राइटर के लिए, एक स्ट्रगलिंग बंदे के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। बैक पैक करो, बॉम्बे आओ, स्ट्रगल करो और फिर राइटर बनो। आपके पास ये करने की जरूरत नहीं, ये करने का डेस्परेशन नहीं है। आप जहां पे भी हैं वहां पे काम कर सकते हैं। आप चाहे भटिंडा में हो या भुसावल में हो, आप कहीं या बड़ौदा में हो, आप जहां पे भी हो, आपको करना क्या है? यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऑडियंस। टुडे यू कैन राइट योर ओन थिंग्स, यू कैन गैदर फ्रेंड्स, जो किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है। आप ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करके शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ट्राई एंड क्रिएट योर ओन ऑडियंस। पहले आप एक रिश्ता तो कायम करें ऑडियंस के साथ, फिर उसको बढ़ाने की बात करें। फिर आप सोचें कि हाँ मैं बॉम्बे जाऊं, किसी को मिलूं। बट आजकल के टाइम में तो श्योर शॉट ऑफकोर्स ये भी हो सकता है कि आप बैक पैक करके बॉम्बे आ गए और आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही करण जौहर ने देख लिया और करण जौहर बोला इसी की तो मुझे तलाश थी, तुम्हारी, चलो मेरे साथ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है, शायद हो सकता है, मगर इसका चांसेस बहुत कम है ना मेरे भाई। चांसेस क्या ज्यादा है? चांसेस ज्यादा ये है कि रोज काम करो, अच्छा मेहनत करो, दोस्तों को इकट्ठा करो, शॉर्ट फिल्म बनाओ, ये करो वो करो, फेस्टिवल में भेजो, अपना फिल्म मेकिंग को जहां पे हो वहां पे आगे बढ़ाओ। फिर धीरे धीरे ऑडियंस नोटिस करना शुरू करेगा, फिर लोग बोलेंगे आज भुवन बम दिल्ली में बैठा था ना, दिल्ली से अभी टुडे ही इज बिकम अ प्रॉपर एक्टर एंड प्रॉपर परफॉर्मर। या शर्ली सेठी है, पिक्चर में लॉन्च हो गई हो,
अभी अगले साल भी लॉकडाउन हो गया इस वजह से नहीं, मगर इसी साल वरना पिक्चर आ जाती है उसकी। ये लोग यूट्यूब स्टार्स हैं, ये लोग इंटरनेट स्टार्स हैं, तो ये श्योर शॉर्ट रास्ता है। I don't even know how TikTok works, but there are a lot of people who are actually searching Yeah. for talent on TikTok now. Yeah. So, Yeah. so there is no excuse for you to not become famous if you want. काम करो, मेहनत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा. Dhwani is asking, please suggest whether reading would develop strong writing skills or listening. क्या Yeah, ज़्यादा करना चाहिए? reading is a very important aspect of my life, and it's also an important aspect of every writer. Because I'll tell you why. Because reading is active entertainment. When you're reading, your brain gets stimulated to visualize it. Correct? आप ये सोचो कि मैं नेटफ्लिक्स के बेस्ट शोज देख के या अमेजोन के बेस्ट शोज, मतलब ओटीटी के बेस्ट शोज देख के, टीवी देख के मैं राइटर बन जाऊंगा, नहीं बनोगे, क्योंकि वो पैसिव एंटरटेनमेंट। योर सी मैं एक बात बोलूं, आप अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आपका हथियार क्या है? आपका दिमाग। प्लीज स्टडी साइकोलॉजी, स्टडी न्यूरो साइंस, स्टडी हाउ योर ब्रेन वर्क्स। इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, पहले थोड़ा ये समझ लो, देन इट बिकम, क्योंकि आपका हथियार है ये। अब इस हथियार को आपको शार्प करना है, तेज करना है। करेक्ट? अगर तलवार आपका हथियार होता तो आप तलवार को ये करते ना, वैसे आपको दिमाग को भी शार्प करना है। तो क्या करना चाहिए? तो योर माइंड नीड्स एक्टिव स्टिमुलेशन टू बी शार्प। एक्टिव स्टिमुलेशन कैसे होगा? गेम्स खेल सकते हो, फिजिकल वर्क कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो, यू कैन रीड, बिकॉज पढ़ने से दैट ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड इनटू थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग मोर। बट इफ यू गिव योरसेल्फ पैसिव एंटरटेनमेंट, आप वो दिमाग को सुला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये डॉक्टर तीर्थ आपसे गाना गवा के ही छोड़ेंगे। माय फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं यार। मैं मतलब हाउ कैन आई से व्हिच सॉन्ग, बट आज बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं चुनर को। So I think Chunar is something which is today is Mother's Day, so everybody is singing. So I can probably sing a few lines from that. Please. जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। क्या बात है, बहुत गंदा, डिलीट कर दो, बहुत गंदा गाया। नहीं, अब तो ये YouTube पे हमेशा के लिए रहेगा, और अगर डिलीट करवाना है अगर आपको ये डिलीट करवाना है तो आप मुझे प्लीज कॉल कीजिए। ये सेशन खत्म होने के बाद वी विल नेगोशिएट। इट्स ओके, यू नो व्हाट, मैं गंदा गाता हूँ, बुरा गाता हूँ, डजंट मैटर। एटलीस्ट आपको इससे हिम्मत आनी चाहिए कि अगर ये आदमी जो इतना बेसुरा गा के बन सकता है, तो फिर आप तो बन ही सकते हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। And I love everyone who attempts to sing this song or any of my song. I love even if they are बेसुरा। कई बार आते हैं ना, बहुत हमको सुन के भी लगता है यार क्यों गाया मेरा गाना, लेकिन but I'm very happy, I'm very proud that so many of you feel connected with this song and you all sing it. It's amazing. हम इसका गरबा में भी हम ये गाना लेते हैं, एंड वी ट्राई एंड डू अ गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ दिस। झीणो झीणो रे उड़्यो गुलाल, माड़ी तारी चूंदलड़ी लहराणी। ओ रंग तारी रीत नू, रंग तारी प्रीत नू, रंग तारी जीत नू चेलावी लावी। रंग तारी रीत नू, रंग तारी प्रीत नू, माड़ी तारी चूंदलड़ी लहराणी। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया। ये हम गरबा में करते हैं। वेरी गुड। अभी इसी का ऑडियो लेके कट करके वो जो मैंने गाया था ना, वो विजुअल पे चिपका देना। पक्का। तो बच जाएंगे अपन।
Thank you, Mayur sir. Thank you so much, and thank you all the attendees. We had a great time, and Yes. it's always fun to connect with Mayur Puri. He's a wonderful artist, and above all, a brilliant human being. And I think that's all that matters. सर आपको बहुत सारी हमारी ओर से शुभकामनाएं. May your coming year and all your coming projects, जैसा आप बता रहे थे कि आप फिरदौस की और दो sequels बनाना चाहते हैं. So we wish you all the best for that, and we will always continue to cheer for you. Thank you. Thank you so much. Love you all. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, Kshitij. Thank you so much.